Hello students. So today we are going to study a new topic which is sexual selection. Now before we start with the topic sexual selection, we should be familiar with some terms such as sexual dimorphism. So as we know that sexual dimorphism, it is the systematic difference in form between the individuals of different sex, that is male and female, in the same species. For example, in case of birds or in case of mammals, for example, the male is always larger than the females. In case of spiders, the female is larger than the male. So these sex specific differences, they include color. For example, as you can see in the in this figure, you can see there is a clear cut difference between the there is so much prominence in the color pattern of the birds, the songs in the birds, the size or presence or of parts of the body used in the struggles for dominance. For example, in some animals they use horns, antlers. In elephants, tusks are used. So in case of honeybees, we can say the size of the eyes. In case of bees, or in babies, the position of stings is also an example. And there are also different thresholds for certain behaviors such as aggression, infant care, etc., parental care, and all. So, sexual dimorphism in humans, it is a subject of much controversy. And human male and female appearances are perceived as different, although Homo sapiens has a low level of sexual dimorphism compared with many other species. So, in humans, the body masses of both male and females are also approximately normally distributed. So, these are the examples that you can see in various animals where you can clearly see the presence of, like, you can see gular pouches in these reptiles. These are these some weapons which acts as sexual dimorphism characteristics, in such as you can see the bony core in this particular animal. In this is a mountain sheep and there is a bony core. Okay, in case of pronghorn, this is an antelope, so you can see the weapons like this. In case of rhinoceros, there is an horn. So in wild beast, these are the weapons. So these are the some characters which are diagnosed as the difference in the form of male and female. And you can see in case of beetles, there is a drastic difference between the male and female with respect to size also, and with respect to the mandible size also. So these are the weapons, we can say these are the weapons. These are these dung beetles. And in case of some birds of paradise, you must have heard about the birds of paradise, the king of Saxony. There the birds are having the ornamental structures, as you can see. In case of males, there is a prominent ornamental structures which are basically used to see this, which are basically used to attract the females for mating. So another, you can see in fishes also, there is a clear cut difference between the male and females of various species. As in this, you can see the size of the dorsal fin. This is a particular dorsal spine. These are these other anal spines and the dorsal pectoral pelvic spines. So sexual size difference is mostly seen in case of insects. For example, in the first figure, in this is a beetle, male and female. Normally the males are smaller in size as compared to female. These are the see the difference in the chelicity of male and female in case of arthropods, mammals. So mountain sheep, the horns in the mountain sheep. Now the question arise, the peacock tail. You must have seen the peacock with a tail. The peacock's tail is an extravagant male ornament. The peacock tails generally impairs his mobility. Now I'm coming to the topic. So जब आप peacock की tail देखोगे तो आपको ये मेल peacock में तो आपको ये लगेगा कि ये natural selection ने ये स्ट्रेट को इवॉल्व कैसे होने दिया, जबकि इस ट्रेट की वजह से इसकी मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है. सो ये नेचुरल सिलेक्शन ने इस तरीके का ट्रेट कैसे इवॉल्व होने दिया. सो इस कंसेप्ट को समझने के लिए, समझाने के लिए, डार्विन ने अपनी सेकंड बुक में 1871 में ऑन द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, वहाँ पे इस टॉपिक को इस
टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन या इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो वहां पे थ्योरी दी गई, व्हाट इज अ थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। सो डार्विन नीडेड अ थ्योरी, उनको एक थ्योरी की जरूरत थी जो ये एक्सप्लेन कर सके कि ऐसा कैरेक्टर कैसे सिलेक्ट हो सकता है जो कि उसकी मोबिलिटी, उसकी सर्वाइवल को कम करवा रहा है और वो फिर भी उसको सिलेक्ट किया जा रहा है नेचर के अंदर। तो ये नेचुरल सिलेक्शन तो हो नहीं सकती। सो वहां से कंसेप्ट बना, इट इज ए सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन इज क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से। नेचुरल सिलेक्शन काम करती है सर्वाइवल को अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जब सेक्सुअल सिलेक्शन काम करती है उसमें फिट मेटिंग सक्सेस को इंप्रूव करने के लिए करती है, चाहे उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सर्वाइवल रेट जो है वो डाउन भी चला जाए। सो इट इज अ वेरिएंस इन मेटिंग सक्सेस जिस प्रिंसिपल पे सेक्सुअल सिलेक्शन काम करता है। सो अब हमें ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सर्वाइवल रेट पे सेक्सुअल सिलेक्शन में, जो नेचुरल सिलेक्शन में नहीं होता। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो द सेक्सुअल सिलेक्शन में फिटनेस इज मेजर्ड रिलेटिव टू द मेंबर्स ऑफ द सेम सेक्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन एंड इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। इंट्रासेक्सुअल के अंदर क्या होगा कि जो मेटिंग सक्सेस है, इट इज डिटरमिन्ड बाय विद इन द सेक्स इंटरेक्शंस। सो मेल और मेल्स आपस में, एक ही सेक्स के मेल्स जो हैं वो आपस में कम्बैट करेंगे, इस तरीके से कम्बैट होगा कि जिस जो उसमें जो विन करेगा वो फीमेल से मेट करेगा। सो इंटरा हो गया ये। इंटर के अंदर क्या होगा कि इट इज बिटवीन दी सेक्स इंटरेक्शंस, दैट इज कि फीमेल चॉइस करेगी मेल्स के ऊपर। सो इसको बोला जाता है एपिगेमिक सिलेक्शन, फीमेल का जो होगा। सो इफ अब हम डिफाइन करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन को, इट इज अ मोड ऑफ, एक तरीके का एक नेचुरल सिलेक्शन का मोड है, ठीक है, in which the members of one biological sex choose mates of the other sex to mate with। अगर वो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो they will choose the mate of the other sex। तो दूसरी तरफ अगर दे compete with the members of the same sex, ताकि फीमेल का एक्सेस हो सके या ऑपोजिट सेक्स का चॉइस उनको मिल सके, उसको बोलेंगे इंट्रासेक्सुअल। तो इंट्रा के अंदर आपस में जो है वो कॉम्बैट होगा और दूसरे वाले में डिस्प्ले होगा। तो हम अगर थोड़ी सी इसमें आगे चलते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दी सेक्सेस, ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल में म्यूचुअल अट्रैक्शन होनी चाहिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिप्रोडक्शन। तो मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ मेनी स्पीशीज दे आर नॉर्मली दे आर सिमिलर इन साइज, शेप भी सेम रहती है, एक्सेप्ट फॉर उनमें ऑब्वियसली सेक्सुअल ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डिफरेंस रहता है, जैसे कि मैमल्स में हम फीमेल्स में ब्रेस्ट की बात करते हैं। सो देयर आर हाउएवर कुछ ऐसे स्पीशीज भी होते हैं जिनमें कि सेक्सेस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट फिजिकल डिफरेंस शो करते हैं, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर मेल्स जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादातर बड़े होते हैं साइज में, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं, ब्राइटली कलर्ड रहते हैं और उनके अंदर बहुत कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं ये अब इनके इनके इसके अंदर नुकसान भी है उनको, क्योंकि इन ट्रेड्स की वजह से दे आर मोर विजिबल टू द प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स इनको बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं, जैसे बड़ी प्लूमेज हो गई बर्ड्स की, लॉन्ग प्लूमेज मेल पीकॉक्स से जो इजीली प्रीडेटर उसको टारगेट कर सकता है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में मैंने भी आपको दिखाया कि जो बड़े बड़े विंग्स थे, ठीक है, मेल डियर्स के अंदर इनके एंटलर्स होते हैं एनॉर्मस, और तो इनकी वजह से जो है प्रीडेटर्स के टारगेट में आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना कॉम्प्रोमाइज किया है सर्वाइवल टू अचीव दी मेटिंग सक्सेस। सो डार्विन न्यू दैट नेचुरल सिलेक्शन कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फेवर। तो नेचुरल सिलेक्शन कभी भी अब एक खराब कैरेक्टर को चूज नहीं करेगी। सो इसीलिए इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम निकाला गया कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया कि ये क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्यों है फिर इस तरीके का जो सिलेक्शन हुआ गया। तो ही प्रपोज्ड कि ऐसे बोला गया कि ये ट्रेड्स सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से अराइज होते हैं, इसमें कोई स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। इसमें जो बेसिकली ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर्स जो होंगे, चाहे वो उसका लाइफ स्पैन सर्वाइवल को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन
दूसरे सेक्स को पोजेस करने के लिए ये चीज सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू ऑक्युपाई की जाती है. सो थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, इट टोटली ऑपरेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, ताकि मेटिंग सक्सेस ज़्यादा हो सके, सक्सेसफुल हो सके, या तो डायरेक्ट कंपटीशन के थ्रू, जो मैंने आपको बताया मेल और मेल के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन. इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सक्सेस करवाती है दोनों सेक्सेस का एट ऑल दी एजेस. ठीक है, लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर क्या होगा, एक सेक्स जो है वो अपने आप को एक तरीके से सैक्रिफाइस कर रहा है, टारगेट दे रहा है, ताकि वो मेट कर सके फीमेल या ऑपोजिट सेक्स के साथ. सो देयर आर फॉलोइंग फॉर्म्स जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं. इट इज अ कंटेस्ट बिटवीन अ मेल्स फॉर एक्सेस टू दी डिजायर्ड फीमेल्स, ताकि सक्सेसफुल मीटिंग हो सके. और दूसरा है फीमेल प्रेफरेंस ले सकती है, जो उसको बेटर लगता है मेल फिनोटाइप्स को, अगर जो उसको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो फीमेल की चॉइस है. ठीक है, और कई बार कॉम्पिटिशन भी रहता है फीमेल्स के बीच में टू चार्म सुपर मेल्स. तो चॉइस ऑफ मेट इज एक्सरसाइज्ड बाय फीमेल्स यहाँ पे. सो इस तो ऑब्वियसली फीमेल को चार्म करने के लिए मेल्स को जो है वो बहुत कंपटीशन में जाना पड़ता है अमंग देमसेल्व्स, ताकि कंपटीशन, इट इज अ कंपटीशन फॉर स्ट्रगल फॉर मेटिंग. नेचुरल सिलेक्शन इज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे स्ट्रगल फॉर मेटिंग है. सो फीमेल्स नॉर्मली जो है इट विल सेलेक्ट दी मोस्ट डिजायरेबल मेल टू बी द फादर ऑफ अर प्रोजेनी, ऑब्वियसली, ताकि वो जीन्स आगे ट्रैवल कर सकें. सो डार्विन एंटिसिपेटेड दिस स्ट्रगल फॉर मेटिंग, वहाँ जहाँ पे कि राइवल मेल, दो मेल्स जो हैं वो आपस में फाइट करेंगे फीमेल के लिए. जैसे कि ये एग्जांपल डियर्स के अंदर और सी लायंस एंड टाइगर्स के अंदर ये एग्जांपल देखा गया है कि जहाँ पे मेल फाइट करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए. सो इट इज़ एन इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. ये फूड के लिए नहीं है, एस्केप के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर मेटिंग. सो इसके अलावा मैनी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो हैं वो कभी एक्सप्लेन नहीं किए जा सके नेचुरल सिलेक्शन से. ऑब्वियसली वो इसीलिए सेक्सुअल सिलेक्शन में एक्सप्लेन करे गए हैं. एंड दूसरा जैसे हो गया, मेल्स हमेशा अबंडेंट रहते हैं, क्योंकि चांस उनको जो फीमेल को जो है प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए मेल की चॉइस ज़्यादा रहे. मेल सीक, ऑब्वियसली मेल्स ही ज़्यादा सीख करते हैं फीमेल्स को फॉर मेटिंग. इन मैनी केसेस द राइवलरी अमंग मेल्स फॉर पोजेशन ऑफ फीमेल्स ज़्यादातर देखी गई है. कुछ केसेस के अंदर फीमेल्स उन मेल्स को सिलेक्ट करती है जिनके कलर्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. एंड मेल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं फीमेल से, बाय थ्रू बर्ड्स के अंदर थ्रू सिंगिंग, डांसिंग, या कुछ और भी बिहेवियरल मेथड्स होते हैं. इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर. सो फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन जो है हक्सले 1938 में दो फॉर्म्स देखी गई थी, एपिगेमिक एंड इंटरसेक्सुअल, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ था. डार्विन ने बहुत एविडेंसेस दिए इसके फेवर के अंदर, लेकिन फिर भी केलॉग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके अंदर क्रिटिसिज्म किया. जैसे कि सेक्सुअल सिलेक्शन कैन अप्लाई ओनली जहाँ पे कि मेल्स आर मोर न्यूमरस, मेल्स का नंबर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे ये अप्लाई हो सकते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल फॉर मास्टरी एंड नॉट एन एक्टिव फीमेल चॉइस. दूसरा पॉइंट क्रिटिसिज्म ये था कि मेटिंग फीमेल जो है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में इट इज़ कम्प्लीटली पैसिव, एक्टिव नहीं होती है. तीसरा पॉइंट जो क्रिटिसिज्म का था कि ऑर्नामेंटल इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन केव फिशेस. तो वहाँ पे कैसे हो रहा है ये सब चीज़ जो है, क्योंकि वो डार्कनेस में रहती है, वहाँ पे ऑर्नामेंटल्स जो है वो मैटर नहीं करती है. Then there is no proof for the aesthetic sense on the part of females for choice on the basis of ऑर्नामेंटल अट्रैक्टिवनेस. ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि फीमेल उसी को चूज करेगी जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है या जिसके पास अच्छा ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं. तो कुछ केसेस जो हैं, ओनली अ फ्यू केसेस ऑफ एक्चुअल चॉइस बाय फीमेल जो रिसर्च पेपर्स में पब्लिश किए हैं कि कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे ही वो चूज करती है. कुछ कैरेक्टर्स जो हैं अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स मेल्स के होते हैं वो फीमेल्स नोट ही नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल्स डंग बीटल्स के अंदर उनके ब्रिलियंट कलर्स, उनके हॉर्न्स वो नोट नहीं किए जाते हैं फीमेल्स के थ्रू, तो वो भी क्रिटिसिज्म का पार्ट आता है. देन कुछ केसेस में डांसेस बाय मेल्स फॉर टू एक्साइट दी फीमेल्स, दे मे बी ओनली नेचुरल ड्यूरिंग दी, ये ब्रीडिंग सीजन के अंदर ही होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल सिलेक्शन का ही पार्ट है.